welcome back. This is Progress with Prachi. I'm Prachi Soni. I will be dealing with class 11th NCERT Geography, India Physical Environment. That is this book. We have already completed one chapter from this book, that is Climate, chapter number 4, Climate, from term 2 of class 12th syllabus. And today we would be starting with chapter number 5. In case you are also studying for any kind of competitive examinations. So this portion of geography, Indian geography, as well as the physical geography portions will help you a lot in scoring good marks and completing geography, because again any competitive exams ask question from NCERT books as well. So let's start with chapter number 5, that is natural vegetation. Now, what do you understand by natural and what do you understand by vegetation? Anything in which there is no human interference, there is no interference by the human beings, is known as natural. And vegetation, any area or any particular growing crop, any region or any place which grows different types of plants or trees or plants and trees are known as vegetation. So you must have visited a forest for a picnic. You might have gone to some park for mangoes, guava or coconut orchards. ये अगर आप गांव में रहते हो तो आपने आसपास अपने बहुत सारे पेड़ वगैरह देखे होंगे. How do you differentiate between a natural vegetation and a planted? Again, I have already told you, planted vegetation is something in which human beings have interfered, and natural vegetation is something which is the nature, which is happening on itself. So the same variety may be found, जैसे you must have heard ये जंगली या फिर ये wild berries हैं या फिर ये wild apple है. So basically something which is growing on their own and something which is grown specifically by human beings. Now, natural vegetation refers to a plant community that has been left undisturbed over a long टाइम. नेचुरल वेजिटेशन क्या है? एक प्लांट की कम्युनिटी होती है, एनी प्लांट कम्युनिटी जिसको बहुत समय तक नहीं छेड़ा गया हो, विच हैज नॉट बीन टच्ड या फिर विच हैज बीन अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन. इतना टाइम होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल स्पीशीज हैं वो खुद के हिसाब से क्लाइमेट में एडजस्ट कर सकें एंड सॉइल कंडीशंस एज फुल्ली पॉसिबल, और सॉइल की जो कंडीशन है उनको पूरी तरीके से पूरी सॉइल कंडीशन जो है पूरी तरीके से रिस्टोर हो सके, सब कुछ मतलब नेचर के हिसाब से एडजस्ट हो जाए विदाउट ह्यूमन बीइंग्स बी प्लेइंग एनी पार्ट इन द प्रोसेस. इंडिया एक ऐसी लैंड है जिसमें ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है. हिमालय हाइट्स में टेम्परेट वेजिटेशन मिलती है. वेस्टर्न घाट्स में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं. डेल्टाइक रीजन हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव्स. डेल्टाइक रीजन्स में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स मिलते हैं. डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान को हम कैक्टाई बोलते हैं. बहुत सारे बुशेस और थॉर्नी वेजिटेशन मिलता है. Depending upon the variations in the climate and the soil, the vegetation of India changes from one region to another. तो जो क्लाइमेट और सॉइल में वेरिएशन है, द वेजिटेशन, इंडिया की जो वेजिटेशन है वो उस हिसाब से चेंज होती है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. अगर हम सर्टेन फीचर्स की बात करें तो कुछ वेजिटेशन टाइप प्रोमिनेंट होता है, कहीं पे ज़्यादा डोमिनेट होता है, कुछ क्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से होता है. इंडियन फॉरेस्ट को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन. ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन. ट्रॉपिकल डिसूडियस. ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. montane forest and littoral and swamp forest. So these are the 5 types of forests which India has. The first one being tropical evergreen and semi-evergreen forest. These forests are found in the western slope of Western Ghats, hills of northeastern region and Andaman and Nicobar Islands. तो वही वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स हमने भी क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा है और हमने देखा है कि किस तरीके से वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड में कितनी ज़्यादा रेनफॉल होती है और ऑलमोस्ट अराउंड 400 सेंटीमीटर की रेनफॉल उनको एनुअली मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, विच मीन्स पूरे साल भर वहाँ पे आपको प्लांट्स, ट्रीज वगैरह ग्रीन देखने को मिलेंगे. नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान एंड निकोबार का जो रीजन है, यहाँ पे सारा एवरग्रीन फॉरेस्ट है.
यहाँ पे वार्म है, ह्यूमिड एरियाज हैं, विद एन एनुअल प्रेसिपिटेशन 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा एनुअल प्रेसिपिटेशन है, यानी कि बारिश होती है, और एनुअल टेम्परेचर ऑलमोस्ट 22 डिग्री सेल्सियस रहता है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रैटिफाइड. नाउ वेल स्ट्रैटिफाइड से मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं स्ट्रैटिफाइड, जिनकी अलग अलग लेयर्स होंगी. मतलब सबसे नीचे ग्रास या फिर नीचे एकदम छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, फिर श्रब्स होंगे, फिर बुशेस होंगे, फिर शॉर्ट ट्रीज होंगे, फिर लॉन्गर ट्रीज होंगे, लार्जर ट्रीज. सो बेसिकली पूरी स्ट्रैटिफिकेशन होती है, पूरी लेयर्स होती है इसमें. Now are well stratified with layers closer to the ground. Shrubs, creepers होंगे, short structured trees होंगे, tall variety of trees होंगे. इन फॉरेस्ट में ट्रीज काफी लंबे लंबे होते हैं, ऑलमोस्ट 60 मीटर और अबव इतने ऊंचे ऊंचे ट्रीज ही मिला. 60 मीटर ट्री, जस्ट इमेजिन हाउ लॉन्ग विल इट बी. देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर द ट्रीज टू शेड देयर लाइव्स. और कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि ट्रीज अपनी लीव्स शेड करेंगे. फ्लावरिंग फ्रूटेशन कभी भी हो जाता है, बिकॉज दे आर एवरग्रीन, हर टाइम एक जैसे रहते हैं. एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल ईयर अराउंड, हरे भरे रहते हैं पूरे साल भर. स्पीशीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, कौन से स्पीशीज मिलते हैं? रोजवुड, मोहोगनी, एनी और इबोनी एटसेट्रा. तो दीज आर सर्टन प्लांट्स जो यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली मिलते हैं. सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? लेस रेनी पार्ट्स, मतलब जो थोड़े से कम रेनी पार्ट्स हैं, एक्सेप्ट वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. यहाँ पे एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस यानी कि मतलब बारिश हो रही है, थोड़ी सी कम हो रही है कंपेयर टू ट्रॉपिकल, पर लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी रहेगी. The undergrowing climbers provide an evergreen character to these forest. नीचे ही नीचे climbers हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी ये हरे भरे लगते हैं साल भर. मेन स्पीशीज जो होती है इन केस ऑफ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर white cedar, hullock and cane. The British were unaware of the economic value of the forests in India. जो ब्रिटिशर्स थे उनको हमारी इकोनॉमिक वैल्यू की बारे में, फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ पता था. एंड दैट इज़ वाई हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो हमारी पूरी फॉरेस्ट लाइफ थी, जो फॉरेस्ट में रहने वाली ट्राइब्स थी, जो ट्राइब्स पूरी तरीके से फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट थी, उनको सबको ख़त्म कर दिया था, उनको मारा था, उनकी लाइफ सेडेंट्री, उनको शहरों में आके बसाना शुरू कर दिया था ताकि वो फॉरेस्ट से रिसोर्सेज लेकर उनको एक्सप्लॉयट कर सके. तो ब्रिटिश वर अवेयर कि फॉरेस्ट इन इंडिया कितने इंपॉर्टेंट है. हेंस उन्होंने लार्ज स्केल पे हमारे फॉरेस्ट को एक्सप्लॉयट करना शुरू किया. जो पूरा स्ट्रक्चर था फॉरेस्ट का, क्योंकि जो लोग वहाँ रहते थे उनको पता था कि वो एट द एंड फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है. तो नॉट जस्ट कंज्यूम, they were also responsible for conservation of the forest. Not just consumption, but conservation was also taken care by those people. और जब आपने उनको वहां से हटा दिया तो ऑटोमेटिकली कंजर्वेशन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हुआ. सो जो ओक फॉरेस्ट है कुमाऊं का, गढ़वाल का, वर रिप्लेस्ड बाय पाइन विच वर नीडेड टू ले रेलवे लाइन्स. तो जो ओक ट्रीज थे पूरे गढ़वाल रीजन में, कुमाऊं रीजन में, उनको हटा के वहाँ पे पाइन के ट्रीज लगा दिया. अब ये पाइन के ट्रीज बस लकड़ी, इनकी लकड़ी काम आती है ताकि रेलवे ट्रैक्स लगाए जा सकें, इस वजह से इनके पाइन के ट्रीज को लगाया था. फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर प्लांटेशन करने के लिए, जैसे कि टी, कॉफी, रबर, इन सब के लिए भी आपकी फॉरेस्ट को कट कर दिया गया था. ब्रिटिश को टिम्बर चाहिए था, लकड़ी चाहिए था कंस्ट्रक्शन करने के लिए. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट इंसुलेटर ऑफ हीट. तो उन्होंने सारे फॉरेस्ट इस वजह से काट दिए. द प्रोटेक्शनल यूज ऑफ फॉरेस्ट वाज दस रिप्लेस्ड बाय, भाई जो मैंने आपको बोला कि जो कंजर्वेशन, जो वहाँ रह रहे थे वो कंजर्वेशन भी करते थे. तो अब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही थी, सिर्फ उसको कमर्शियली यूज किया जा रहा था, सिर्फ कंजम्पशन हो रहा था. देयर वाज नो प्रोटेक्शन, देयर वाज नो कंजर्वेशन. दिस वाज ट्रॉपिकल, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन. नाउ इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस. These are the most widespread forest in India. जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट टाइप है हमारी कंट्री में, that is tropical deciduous forest. They are also called monsoon forest. इनको हम मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं. क्यों मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं? क्योंकि ये बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं इनकी ग्रीनरी, हरे भरे चीज के लिए. They spread over the regions which receive 70 से 120 सेंटीमीटर की, 70 से 200 ना, more than 200 is evergreen.
70 to 200 सेंटीमीटर इज डेसिडुअस। अभी इस 70 to 200 में भी बीच में दो डिविजन होगी, जिसमें एक होंगे मॉइस्ट डेसिडुअस और एक होगा ड्राई डेसिडुअस। सो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है are more pronounced in the region which record rainfall between 100 to 200 centimeters. So now 70 more than 200 is your tropical evergreen. 100 to 200 is your moist deciduous. 70 to 100 is your dry deciduous. And अभी 70 से कम तो फिर arid में आ जाएंगे हम. So the moist deciduous forests are more pronounced in the regions which record rainfall between 100 to 200 centimeter. These forests are found in northeastern states along the foothills Himalayas के आसपास, eastern slopes of western Ghats around ईस्टर्न स्लोप, दूसरी तरफ वेस्टर्न घाट्स के, ओडिशा, इन सब जगह में आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। यहाँ के फेमस इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? टीक, सल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आमला, सीमुल, कुसुम एंड सैंडलवुड। आई एम रिपीटिंग अगेन, टीक, सल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आमला, सीमुल, कुसुम एंड सैंडलवुड etc. are the main species of these forest. Next is dry deciduous forest. ये एक वास्ट एरिया कवर करता है हमारी कंट्री का, जहाँ पे रेनफॉल रेंज 100 से 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। वेटर मार्जिन मतलब थोड़ा अराउंड 100 सेंटीमीटर के आसपास, उसको हम ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। मॉइस्ट टू ड्राई का ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। ड्रायर मार्जिन को मतलब जो थोड़े से ड्राई होते हैं उनको हम थॉर्न फॉरेस्ट बोलते हैं। These forests are found in rainier areas of the peninsula. जो rainier मतलब जहाँ बारिश होगी, पेनिनसुला, उत्तर प्रदेश के प्लेन्स एंड बिहार। इन हायर रेनफॉल रीजन्स ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू एंड नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में जो फॉरेस्ट हैं वो आपके ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट हैं। इनका एक पार्क लैंड लैंडस्केप होता है, काफी बड़े बड़े स्ट्रेचेस होते हैं, पेड़ थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। इन विच टीक and other trees interspersed, अलग अलग पैचेस अलग अलग दूर दूर होते हैं। As the dry season begins, जो trees हैं वो अपनी leaves shed कर देते हैं पूरी तरीके से completely, और forest एक vast grassland की तरह लगने लगता है without any trees, naked. तेंदू, पाला, अमलताज, बेल, खैर, एक्सलवुड are some of the important dry deciduous forest areas which is present in our dry deciduous varieties which are present in India. Now, in the western and the southern part of Rajasthan, vegetation cover is very scanty due to low rainfall and overgrazing. तो western और सर्दर्न पार्ट जो है हिमालयाज का या राजस्थान का, काफी ड्राई एरिया है, वो थार डेजर्ट वगैरह यहाँ पे है। यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही स्कैंटी है, बहुत ही कम है, एंड इस वजह से लो रेनफॉल है और ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज योर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न से ही मतलब ही समझ में आ रहा है, थॉर्न यानी ड्राई। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट अकर इन द एरिया विच रिसीव रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। तो वो एरिया जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होगी वो हमारे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहलाए जाएंगे। ये यहाँ पे ग्रासेस होती हैं, श्रब्स होते हैं, ड्राई वाली जो बहुत चुभने वाली ग्रासेस होती हैं वो यहाँ मिलेंगी आपको। सेमी एरिड एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब आपका, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर सम प्लेसेस जहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, यहाँ के प्लांट्स लीफलेस रहते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। यहाँ के प्लांट्स में लीव्स नहीं होती हैं। गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ स्क्रब वेजिटेशन, स्क्रब ड्राई काफी वेजिटेशन होती है। बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खैर, नीम, खिजरी, पाला, दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रीज प्लांट्स जो हमें यहाँ पे मिलते हैं। टुस्कोस्की ग्रास ग्रोज अप टू द हाइट ऑफ 2 मीटर एज द अंडरग्रोथ, और जो एक ग्रास का टाइप है टुसौकी ग्रास, विच यहाँ पे 2-2 मीटर इतनी ऊंची ग्रास, यहाँ पे 2-2 मीटर की ग्रास आपकी हाइट पे राइज कर जाती है। नेक्स्ट इज मॉन्टेन फॉरेस्ट।
जिसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू माउंटेन. So montane forest, in mountainous areas, the decrease in the temperature with increasing altitude leads to a corresponding change in natural vegetation. तो mountainous areas में क्या होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से और एल्टीट्यूड हाइट बढ़ने की वजह से क्लाइमेट में चेंज आता है, और क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से नेचुरल वेजिटेशन में चेंज आता है. माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. माउंटेन फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट. नॉर्थ माउंटेन फॉरेस्ट और साउथ माउंटेन फॉरेस्ट. Northern mountain forest and southern mountain forest. The Himalayan ranges show a succession of vegetation from the tropical to the tundra, which change with the altitude. तो बेसिकली हिमालय की जो रेंज है, इसमें नीचे से ऊपर जाते वक्त आपका पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है. आप टेम्परेट जोन से, अगर आप हिमालय कोई पहाड़ के नीचे खड़े हो तो यहाँ पे टेम्परेट जोन होगा. आप ऊपर चलते जाओगे तो एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा और ऊपर का क्लाइमेट टुंद्रा टाइप क्लाइमेट हो जाएगा. सो डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं हमको फुट हिल्स, एकदम नीचे पहाड़ों के, हिमालयस के नीचे एकदम कौन से फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, फाउंड इन दी फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस. फिर थोड़े सा वेट टेम्परेट टाइप फॉरेस्ट मिलेंगे आपको 1000 से 2000 मीटर तक की हाइट पे. In the higher hills ranges from the northeastern India, hilly areas of West Bengal और कुछ उत्तरांचल का एरिया, यहाँ पे evergreen broad leaf, बड़े बड़े पत्तों वाली लीफ वाली ट्रीज होते हैं, जैसे कि ओक एंड चेस्टनट्स आर प्रीडोमिनेंट. 1500 से 1700 मीटर, 1500 से 1700 मीटर, 1750 मीटर पे पाइन फॉरेस्ट भी होते हैं. इस जोन में काफी डेवलप्ड होते हैं, जिसमें चीर पाइन इनकी वेरी यूजफुल कमर्शियल ट्री होता है. दियोदार बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है. दियोदार एक हाईली वैल्यूड एंडेमिक स्पीशी है जो सिर्फ हिमालयाज के आसपास ही ग्रो होती है. दियोदार की जो लकड़ी होती है, इट्स अ वेरी ड्यूरेबल वुड, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए बहुत यूज होती है. सिमिलरली चिनार एंड दी वॉलनट, ये भी ट्रीज के नाम है, विच सस्टेन दी फेमस, ये जो लकड़ी है कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स चिनार और वॉलनट की लकड़ी से ही चल रहे हैं. ब्लू पाइन एंड स्प्रूस जो है, दैट अपीयर्स एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2225 to 3048 meters. एंड मैनी प्लेसेस इन दिस जोन जो टेम्परेट ग्रासलैंड भी मिले हैं हमको अलग अलग जगह पे. नाउ बट इन दी हायर रीचेस, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, एल्पाइन फॉरेस्ट पास्चर्स, बहुत थोड़े कहीं दूर पेड़ पौधे देखेंगे, मेजरली नहीं होगा. ड्राई सिल्वर फर्स, जूनिपर्स, पाइन, बर्च एंड रोडोडेंड्रॉन्स, ये कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो 3000 से 4000 मीटर हाइट पे आपको मिलेंगे. However, these pastures are used extensively by transhumance tribes. Transhumance क्या होता है? When जो tribes होती हैं वो सर्दी होने पे नीचे आती हैं, ठंड होने पे सर्दी होने पे नीचे आती हैं, गर्मी होने पे वापस ऊपर चली जाती हैं, एल्टीट्यूड. सो दे मूव, उनको ट्रांसह्यूमेंस ट्राइब बोलते हैं. जब ये ट्रांसह्यूमेंस होता है, ऊपर नीचे जाती हैं, तो ये जो ट्राइब्स हैं जनरली बीच में जो जितने पेड़ पौधे आते हैं उनको कंज्यूम कर लेते हैं. और सम ट्राइब्स विच प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस आर गुजर्स, बकरवाल्स, भोटियाज एंड गड्डीज. जो सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयाज कैरी अ थिकर वेजिटेशन कवर, जो साउथ का स्लोप है उसमें थिकर वेजिटेशन कवर है बिकॉज ऑफ रिलेटिवली हायर प्रेसिपिटेशन दैन द ड्रायर नॉर्थ फेसिंग slopes. Higher precipitation than the drier north facing slopes. जो southern slopes क्योंकि नीचे की तरफ है, कम एल्टीट्यूड है, टेम्परेचर ज़्यादा है, अच्छा टेम्परेचर, अच्छा क्लाइमेट है फॉर वेजिटेशन, तो यहाँ पे ज़्यादा थिकर है और ऊपर कम है. ज़्यादा एल्टीट्यूड पे मॉसेज, लाइकेंस वगैरह मिलते हैं, तुंद्रा वेजिटेशन में और कुछ नहीं यहाँ पे आपको ऊपर जाके मिलता. Now the southern mountain forest include the forest फाउंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट एरियाज. एक तो नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हिमालयाज हो गया सदर्न माउंटेन्स. हमारे साउथ इंडिया में भी तो बहुत सारे माउंटेन्स है ना. तो सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट फाउंड इन 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न घाट्स, विंध्याचल एंड नीलगिरीज. तो 3 और सदर्न माउंटेन्स में भी अलग टाइप का फॉरेस्ट है. एज दे आर, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के क्लोजर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के पास है, एंड ओनली ज़्यादा इनकी हाइट भी नहीं होती है, 1500 मीटर
above ही है सी लेवल से. वेजिटेशन इज टेम्परेट. वेजिटेशन टेम्परेट होती है हायर रीजन्स में. सबट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल ऑन द लोअर रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट, स्पेशली केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में. जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं उनको शोलाज बोला जाता है नीलगिरी में, अन्नामलाई और पालनी हिल्स में. Some of the other trees in this forest of economic significance include magnolia, not Mongolia, magnolia, laurel, cinchona, and wattle. Such forests are also found in Satpura and Maikal range. So Maikal range, Satpura range, just go through the map, mark all these ranges, mountains जो भी इसमें लिखा हुआ है. Western Ghats, Vidhyans, Nilgiris, Annamalai hills, Palani hills, Maikal range, Satpura, you can mark these. और जो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी में जो फॉरेस्ट है उनको हम शोलास बोलते हैं. सो दैट्स इट. वी हैव लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट लेफ्ट. लेट्स कंप्लीट दिस वन एज वेल सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट विद फॉरेस्ट कवर इन इंडिया. इंडिया हैज अ रिच वेराइटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स. इंडिया की जो वेटलैंड्स है वो काफ़ी अच्छी रिच वेराइटी है. और अबाउट 70% ऑफ दिस कंप्रेस एरिया अंडर पैडी कल्टिवेशन. और 70% जो हम खेती बाड़ी क्रॉप उगा रहे हैं वो हम पैडी में, चावल में यूज कर रहे हैं. द टोटल एरिया ऑफ वेट लैंड इज 3.9 मिलियन हेक्टेयर्स. टोटल वेट एरिया मतलब जितना एरिया में हम चावल ग्रो कर रहे हैं, राइस ग्रो कर रहे हैं, इट इज अराउंड 3.9 मिलियन हेक्टेयर जमीन. 2 sites, चिलिका लेक ओडिशा एंड कोलादियो नेशनल पार्क भरतपुर, आर प्रोटेक्टेड एज वाटरफॉल हैबिटेट्स अंडर द कन्वेंशन ऑफ रामसार साइट. में इसमें 2 ही लिखी हुई हैं. एक्चुअली अभी इंडिया में 10 रामसार साइट्स हो गई. एंड दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो. आई रिक्वेस्ट यू टू फाइंड आउट ऑल द रामसार साइट्स प्रेजेंट टुडे इन इंडिया एंड राइट दोज रामसार साइट्स इन द कमेंट सेक्शन. सो आर प्रोटेक्टेड एज वाटर. कुछ एरिया, चिलिका लेक है, केलादिया नेशनल पार्क है, इनको प्रोटेक्ट किया गया है रामसार कन्वेंशन. रामसार इज अ प्लेस इन ईरान जिसके नाम पे ये कंजर्वेशन हुआ है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट Ramsar sites in India. The country's wetlands have been grouped into 8 categories. जो country के wetland है वो 8 category में divide करे जाते हैं. First, the reservoirs of the Deccan Plateau in the south, together with lagoons and other wetlands of the southern west coast. सबसे पहला है Deccan Plateau के जो reservoirs हैं south वाली side में, lagoon areas जो केरला के हो गए आपके, and the wetlands of southern west coast. तो west coast के आसपास जो गीला इलाका है wetlands. Next is the vast saline expanses of Rajasthan, Gujarat and the Gulf of Kutch. Saline यानी कि नमकीन, उस वो जो एरिया है आपका गुजरात का, राजस्थान का और गल्फ ऑफ कच्छ का. फ्रेश वाटर लेक्स हैं आपकी और रिजर्वॉयर्स जो बने हुए हैं ईस्टवर्ड राजस्थान में और मध्य प्रदेश में. डेल्टा वेटलैंड्स, डेल्टा के आसपास का जो एरिया है, डेल्टा वेटलैंड्स और लगून जैसे कि चिलिका लेक है. इसमें गंगेटिक प्लेन में कुछ फ्रेश वाटर के मासेस हैं, एरियाज हैं, मार्शेस बोलते हैं उनको, वो भी वेटलैंड में आते हैं. द फ्लड प्लेन ऑफ द ब्रह्मपुत्रा का फ्लड प्लेन यानी कि ब्रह्मपुत्र जब बहती है तो वो जिस एरिया तक उसका पानी जाता है उसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो अंडर वेटलैंड. Next is marshes and swamps, hills of northeastern India, Himalayan foothills. Next is the lake or rivers जो कि कश्मीर और लद्दाख में है. Then mangrove forest and other wetland of the island arcs of Andaman and Nicobar Islands. Mangroves grow along the coast in the salt marshes. Important, mangrove जो forest होता है वो उसके लिए salty area का जरूरी है. salt marshes के आसपास grow होते हैं. Tidal creeks यानी कि टाइड पढ़ लिया हमने. टाइड से क्या होता है, पानी ऊपर आना नीचे आना. क्रीक क्या होती है, थोड़ा सा गैप, 2 लैंडमास के बीच में जो थोड़ा सा लंबा सा गैप होता है, दैट इज नोन एज अ क्रीक. और इन्हीं क्रीक्स में आपके मैंग्रोव ग्रो करते हैं. टाइडल क्रीक्स के बीच में मड फ्लैट्स एंड एस्चुअरीज. दे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. और ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, मतलब ये सॉल्ट एरिया में आसानी से ग्रो करते हैं क्योंकि इन पर सॉल्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता है. Criss-crossed by creeks of stagnant water and tidal flows. इसमें से मतलब फंसे होते हैं, criss-crossed होते हैं. These forests give shelter. काफी wide variety of birds को यहाँ पे shelter मिलता है, काफी अच्छा होता है ये उनके लिए. इंडिया में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो अराउंड 6,740 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं.
which is 7% of world's total mangrove forest, which is a very good thing. हाईली डेवलप्ड है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, और अंडमान एंड निकोबार में है, सुंदरबंस में है, वेस्ट बंगाल में. अदर एरियाज महानदी के आसपास, जो रिवर महानदी है उसके आसपास, गोदावरी कृष्णा डेल्टास के आसपास आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे. दीज फॉरेस्ट टू, इनको भी खराब किया जा रहा है, इंक्रोचमेंट हो रही है, और इनकी भी कंजर्वेशन करने की आज हमको जरूरत है. एंड नॉट जस्ट दीज फॉरेस्ट, ऑल द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट वी हैव स्टडीड. हमने देखा कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट पे ओवरटली डिपेंडेंट हैं, एंड देयर इज अ अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व दीज forest. And now forest cover in India, we will deal with this in the next class. Thank you for having me. Bye bye and have